was the second year of his high school. Richard F. Wright began to research that led to his discovery of an unknown insect hormone. जैसे वो सेकेंड ईयर्स में था हाई स्कूल्स में, आफ्टर दैट वो वाज जस्ट स्टार्ट, जैसे वो अपना रिसर्च स्टार्ट करता है इसमें अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जिसके बारे में वो जानता नहीं था, दिस इज नोन एज द हार्मोन ऑफ इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट के हार्मोन के बारे में वो जो जानता नहीं था उसके बारे में क्या करते हैं, रिसर्च। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, and that once he was give the name, and what was the name, it also led to his new theory, वो अपने एक न्यू थ्योरी देता है जिसका नेम था on the life of cells, जिसमें on the life of cells के नाम से एक न्यू थ्योरी देता है। The question he tried to answer was simple, क्वेश्चन क्या था, आसान था, जिसका आंसर क्या है, क्वेश्चन he tried to answer was simple, उसको समझना, उसके बारे में कोशिश करना बहुत आसान था। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch's pupa? कि उनका मेन पर्पस क्या था, The 12 tiny gold spots on the monarch's pupa, कि उसमें क्या होते हैं, कि मेन उद्देश्य यही था कि जो 12 tiny गोल्ड स्पॉट होते हैं मोनार्च में क्यों होता है, यही उसका मेन पर्पस था। Everyone asserted the spots were just ornamentals, Wright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. Dr. Urquhart, when he was first time suggesting him, and he can't believe that, उसको यकीन भी नहीं होता। Everyone has spots were just ornamental, सबको लगता है कि वो एक ornamental है, जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्च पुपा में वो ऑर्नामेंट लगता है। एब्राइट्स भी कहता है, बट जो डॉक्टर अर्कहर्ट होते हैं वो उसको बिलीव नहीं करते। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that solved that the spot were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. And after that, when Dr. Urquhart didn't believe, जब उनको यकीन नहीं होता तो क्या करने लगते हैं, they are start to find the answer, वो आंसर फाइंड करने लगते हैं। And another excellent science students first had to build a device, and after that all students, those students have belonged to the excellent science, they were started to find the answer, and they want collect the device, वो सब चीज़ क्या करने लगते हैं, जो एक्सीलेंट साइंस के स्टूडेंट्स थे वो डिवाइस कलेक्ट करने लगते हैं। दैट्स ऑफ द स्पॉट वर प्रोडक्शन अ हार्मोन, एंड आफ्टर दैट दे फाइंड दैट्स ऑफ द स्पॉट वर प्रोडक्शन अ हार्मोन, कि जो हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है वो उस स्पॉट से ही दिखाई देने लगता है। नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट, और यही हार्मोन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, एज अ नेसेसरी, अनिवार्य होता है, इसके लिए बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए, फुल डेवलपमेंट के लिए वो जो स्पॉट होता है, वो जो हार्मोन्स होता है, इट्स कंपल्सरी होता है। दिस प्रोजेक्ट won Ebright first place in the country fair and entry into the International Science and Engineering Fair. When this experiment, he was given as the first place in his country fair, उनके country fair में उनको first positions मिलता है, and he was the entry point to the International Science and Engineering Fair, और उसके बाद वो उसका entry होता है इसमें International and Engineering Fair में। There he won third place for zoology, and after that when he was the International Science and Engineering Fair, so he was rewarded third position, उनको third position मिलता है for zoology के लिए। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. After that he was get a huge responsibility as a huge
chance, and that was the biggest chance of his life as the related of work of summertime as a related of entomology. अब उसको क्या होता है, उनको एक चांस मिलता है। वो चांस क्या था, समर टाइम्स के दौरान उनको इंफोलॉजी लैबोरेटरी में वाटर रिच आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना था। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch pupa. After that, he is the continue when he was the high school junior, but he was continue doing his experiment as a related of monarch pupa. वो लगातार क्या करने लगते हैं, इस बटरफ्लाइज पे वो लगातार अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो करता ही जाता है। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in Army laboratory during the summer. After that, he was get a first positions on that International Science Fair, and he was giving another opportunity for science army institutions of that laboratory. He will be give another opportunity to him. उसको दोबारा मौका मिलता है उस इसमें जो आर्मी लैबोरेटरी था उसमें वर्क करने के लिए उनको दोबारा मौका मिलता है समर टाइम्स में, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए उनको इंटरनेशनल साइंस फेयर के थ्रू फर्स्ट रिवॉर्ड मिलता है। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर एंड ही हैव अ फर्स्ट ऑफ जूनियर ईयर्स, नाउ ही हैव अ सीनियर ईयर्स, सो ही वाज द कंटिन्यू मूव फॉरवर्ड। ही वाज नॉट लुकिंग टू बैक, वो पीछे नहीं जाता, वो अपने कदम को और आगे बढ़ाने लगता है। He gave cells from a monarch's wing in the culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spot. जैसे वो क्या होता है वो बताने लगता है। He gave cells की सेल्स कैसे पड़ता है फ्रॉम अ मोनार्च विंग, जो मोनार्च का विंग होता है, पंख होते हैं, उसमें उनका कल्चरल सॉफ्ट दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स। देयर हैव जस्ट डिफरेंट, एंड व्हाट वाज दैट, गोल्ड, दैट वाज द गोल्ड spots have a different, they have a comparing with normal butterfly and comparing with monarch pupa। इसमें यही चीज़ें उसको अलग कर देती है, जो उनके गोल्ड स्पॉट होते हैं वो सेल उसके ग्रो होने के कारण वो दूसरे बटरफ्लाई से उसको अलग कर देता है। That project won first place in zoology at the international fair. When these types of things, when he was tell about the gold spots related of monarch pupa, so he was the rewarded in the first positions of the international academy। अब इंटरनेशनल एकेडमी में उनको जूलॉजी के थ्रू क्या होता है, फर्स्ट पोजीशंस मिलता है। अब फर्स्ट पोजीशंस क्या होता है, उनको मिलने के बाद ही स्पेंड द समर आफ्टर graduations zoology at the international fair, graduations doing further work at the army laboratory and the laboratory of the US Department of Agriculture। उसके बाद उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू मिलती जाती है। पहले तो हमने देख ही चुका है कि उससे पहले उनको जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में जो फर्स्ट प्राइज अवार्ड्स मिलता है, उसके बाद उनको क्या मिलता है, आर्मी जो लेबोरेटरी उसमें काम करने का मौका मिलता है। अब होता क्या है, उसी लेबोरेटरी में फिर से उसको समर ग्रेजुएशंस के बाद, हियर आई एम नॉट टेलिंग अ हाई स्कूल, नाउ आफ्टर ग्रेजुएशंस डूइंग फर्दर वर्क फॉर द आर्मी लेबोरेटरी। अब उसी लेबोरेटरी में फिर से उसको काम करने का मौका मिलता है एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इस बार जो लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए मिलता है वो US डिपार्टमेंट से मिलता है, कहाँ से, ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आफ्टर ही वाज द कंटिन्यू एज समर टाइम्स, नाउ ही इज द फ्रेशमैन ईयर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो वर्क करता है, ही वाज द फर्स्ट टाइम, दैट्स कॉल्ड हियर हैव यूजिंग ऑफ फ्रेश, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ से और नहीं आया, फर्स्ट टाइम उनके लाइफ का था। Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spot. After that, he was went back where he was doing as the previous summer.
जब समर वर्क्स में उसी लैबोरेटरी में वापस चला जाता है जहाँ पे वो काम कर रहा था, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वो वापस चला जाता है एंड डिड मोर वर्क रिलेटेड ऑफ हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट एंड कंटिन्यू ही वाज वर्क ऑन दैट प्लेस बिकॉज ही वांट टू नो अबाउट द मोनार्च पुपा। अब मोनार्च पुपा के लिए वो उस गोल्ड स्पॉट के बारे में फिर से कंटिन्यू वापस जाके उसी को रिसर्च को आगे कंटिन्यू करता है। यूजिंग द लैबोरेटरी sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structures. When they have that laboratory have using sophisticated instruments, वहाँ पे जितने भी चाहे इंस्ट्रूमेंट्स थे औजार थे उसका क्या करने लगता है, आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, उसको आइडेंटिफाई करके पहचान करके उसके स्ट्रक्चर्स को क्या करने लगता है, उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर्स को फाइंड करने लगता है। A year and a half later, it means 1.5 years later, during his junior year, जैसे इनिशियल या फिर 1.5 years के बाद क्या होता है, जब वो जूनियर ईयर्स में होता है तभी Wright got the idea for his new theory about cell life। जब वो उस टाइम था तो उनके माइंड में एक नया आइडिया आता है। वो आइडिया किसके लिए था, एक न्यू थ्योरी आता है, वो था सेल के बारे में। It come while he was looking at X-ray photo of the chemical structure of a hormone। And what was that? He was looking at X-ray, वो X-ray के बारे में देखता है and photos of the chemical structure of hormone, जो हार्मोन्स होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में वो लगातार देखने लगता है। When he was those photos, Wright didn't shout when he saw those photos। जैसे वो he was observed that photos, जैसे उस फोटोज को देखता था, Wright didn't shout, he didn't shout, वो चिल्लाता नहीं, Eureka or even I have got it, because he didn't shout Eureka or even, वो यूरेका इन चीज़ों के बारे में चिल्लाता नहीं है, I have got it, वो उसको मिल गया था। But he believed that along with his findings about insect hormones, because he was the belief about his work and definitely was the belief his finding insect hormones, उसको लगता है कि यकीन भी था कि वो उस हार्मोन इंसेक्ट्स का क्या कर सकता है, उसको मिल सकता है। The photos gave him the answer of the biologist puzzle and after that when he was observed that photos, she was to find the answer according to बायोलॉजी पजल, जो बायोलॉजी का पजल था पहली था, उसका आंसर उसको उस फोटो से मिल जाता है। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द आंसर, हाउ द सेल कैन रीड, कि उस सेल को कैसे रीड किया जा सकता है ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उस डीएनए से उसके बारे में उनको पता चल जाता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इसमें यही बताया गया कि डीएनए क्या है, लाइफ का एक सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है।